So now I'll go in a flow, okay? Hello students, good afternoon, all of you. Good afternoon. So here we go. We are doing our second video of and live class of basic chemistry. In chemistry, if some teachers may be watching this video, please try to understand that we will go in an organized way and will try to put in things which are important for a student to understand, and will not give too much of importance to the historical aspect of chemistry, though we will try to let the children understand and will give information whenever needed. Now here we go. First of the thing is, the first part which we have to study is matter. Now whole class, very loudly, can you tell me what is the purest form of matter? Elements. You tell me, why elements are called the purest form of matter? Elements are called purest form of matter because it is made of same kinds of atoms. Very good. Okay. Thank you, sir. Thank you. Now next, Tejas, come here. Why compounds are called pure form of matter? Compounds are called pure form of matter because it is made up of same kind of molecules. Very good. And that means compounds are made by chemical combination of different elements, atoms of different elements. Can you give me an example of compound? Sir, H2O. H2O, water. All right. So water is made by chemical combination of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms. All right. Swastik, carbon dioxide, what is the formula? Very loudly, can you tell you? CO2. Very good. Carbon dioxide, CO2. That means 1 carbon atom and 2 oxygen atom. Right. So we have understood about elements. We have understood about compound. I think Tejas gave a very good definition about elements. Tejas, can you about mixture? Tejas, can you give what are mixtures? Can you give the definition? It is a physical combination of 2 or more substances and it doesn't have formula. Yeah, it doesn't have formula. See, in one shot he said everything. That if things have formula, that means the proportion of their component will be fixed. Like water has a formula. So what the formula is H2O. So you drink water here or you drink water in England. Every water atom will be made up of how many hydrogen atoms? 2. And 1 oxygen atom. It may be possible that Ankit says that in our house there is water whose formula is H3O. Is it possible? No, it is not possible. But for mixture he can tell that in my house the sarbat which I make, the lemonade which I make, or the sugar solution which I made, I put 1 teaspoon and in 100 ml of water. But sometimes when my favorite teacher comes, then I put 2 teaspoons of sugar in 100 ml of water. Therefore the combination or component percentage also varies in a mixture. Good. Thank you so much. Ankit, now come here. Can you give me name of 2 elements with symbol? Sulfur. Very good. What is the symbol of sulfur? S. S. Then Potassium. sodium, potassium. Okay, symbol of potassium is K. Anybody knowing the atomic number of potassium? Who knows? Who knows atomic number of potassium? Okay, Amar, very loudly you say so that 19. Very good. Atomic number. Good. Sit down. Atomic number of potassium is 19. Let us give a good hand. Oh my God. That means you have learnt the names of 1 to 10 elements at least. Come, can you tell me slowly the names and symbols of first 10 elements? See, atomic number 1 se start karte hai. What is that? Hydrogen. Okay. Sign H. Number 2. Helium. Number 3. Lithium. Number 4. Beryllium. Number 5. Boron. Number 6. Carbon. Number 7. Nitrogen. Number 8. Oxygen. Oh my God. Number 9. Fluorine. Very near. Now number 10. Neon. Neon. God, let us give a very big hand. Anybody knows more than that? Palak, can you come? Can you introduce yourself to the class? Yes, tell me. Tell me. My name is Palak. My school name is St. Joseph Convent High School, and Yeah, tell me. Start from 1. Let us see. You can go fast so that I can start the class. Start with 1. 1. nitrogen, helium, Okay. lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, Yes. fluorine, Okay. neon, sodium, magnesium, 12. Very good. aluminum, 13. silicon, 14. phosphorus, 15. sulfur, 16. chlorine, Okay. argon, Okay. potassium,
Calcium. Calcium is 20. Wait, 20. Let us give a good and little bit of assistance we can give. Do you know more than that? Yes. Okay, tell me. 21 is? Scandium, Okay. titanium, Okay. vanadium, Hmm. chromium, Very good. manganese, Okay. iron, Iron is 26. My God. Then? iron, cobalt, Okay, 27. nickel, 28. copper. Okay, 29. Zinc. Very big hand to her. Very good. God bless you. Very good. Actually, in atomic number 4 is beryllium. All right. That has to be pronounced beryllium. All right. So we have understood about elements. Now we have understood about elements. Now Tejas, you may be knowing that why hydrogen is different than helium. It appears in the atomic number, or why hydrogen is different than lithium. It appears in atomic number only. This one tells how many things. Sir, that atomic number of Okay, come. This one tells how many things. Sir, that atomic number of hydrogen is 1. The number of protons present in hydrogen is 1. Hydrogen atom is 1. Very good. And Number of electron. electrons in neutronic. Neutral atom is 1. Neutral hydrogen atom is 1. Very good. Good, sit down. That means हाइड्रोजन एटॉम जो है वो एक प्रोटॉन से बना है और एक इलेक्ट्रॉन से बना। सिर्फ जानकारी के लिए बता दें कि मोस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एटॉम में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एटॉम हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द लिथियम एटम, पता चल गया। हाइड्रोजन के एटॉम में एक प्रोटॉन है जबकि लिथियम के एटॉम में 3 प्रोटॉन है। तो लिथियम के सारे एटॉम्स में 3 प्रोटॉन होगा। और प्रोटॉन के नंबर को क्या कहा जाता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड व्हाट? ए से शुरू है वह। यस, वेरी गुड। जब है तो बोलिए, घबराइए नहीं। यस, व्हाट इज इट कॉल्ड? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कहा जाता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। कोई ऐसा कह सकता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, हम बोलते हैं कि लिथियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 3 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 है। तो न्यूट्रल एटम ऑफ लिथियम में तो 3 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तो इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं एटॉमिक नंबर बोला जाता? कोई जानता है थोड़ा बहुत? यस Sir, it cannot called electrons because in reaction it can goes out in orbit. It can come in orbit also. इलेक्ट्रॉन्स कैन, यस, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या रिएक्शन के दौरान या बॉन्डिंग के दौरान चेंज हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में जब भी, जैसे तेजस बहुत स्मार्ट लड़का, उसने कहा कि हाइड्रोजन के एक एटॉम में एक प्रोटॉन है और कहा कि हाइड्रोजन के न्यूट्रल एटॉम में एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर चला गया तो फिर वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, प्लस हो जाएगा, या और इलेक्ट्रॉन आ गया तो माइनस हो जाएगा उस पर चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या घट सकता है या बढ़ सकता है। यहाँ तक हम लोग एकदम क्लियर हैं। अब हम लोग आते हैं एटॉमिक मॉडल पर। एटॉमिक मॉडल, इसका मतलब आप समझ में आना चाहिए आपको कि एक एटॉम के अंदर में न्यूक्लियस होता है। देखिए यहाँ पर लाल घेरा हुआ जो न्यूक्लियस है, सभी एटॉम को न्यूक्लियस होता है। वो न्यूक्लियस पूरे एटॉम का बहुत छोटा पार्ट होता है। ये भी जान लीजिए बच्चों, ये बहुत मैग्नीफाइड बात है अंकित, ये बहुत मैग्नीफाइड चीज़ है। ये प्रोटॉन एटॉम जो एक्चुअली में बहुत छोटा होता है। आर यू फॉलोइंग? इसको क्या कहा जाता है? इधर आइए, आप मास्क उतार के आ सकते हैं, इधर आइए। सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कौन स्कूल से, कस के जरा बता दें। Hello, my name is Aditya and I am from Birla Public School, which is situated in Rajasthan. Rajasthan. Okay, very good, very good. So, what are the fundamental particles which reside in the nucleus? Which are the two things? Sir, proton and neutron. And what orbits around the nucleus? Sir, electrons. Electron. Very good. Sit down. So, proton and neutrons are basically inside what to say the nucleus. All right. And electrons, they revolve around the orbit. बच्चों, सो नाउ अंडरस्टैंड, डिसिप्लिन इज एवरीवेयर स्वस्तिक इन लाइफ। डिसिप्लिन हर जगह है लाइफ में, है ना। आप सिनेमा हॉल में जानते हैं पूरा टिकट खरीद लेते हैं क्या? कहीं मन, जहां मन वहां बैठ जाते हैं हमारे? क्या होता है? सिनेमा हॉल गए और टिकट वाला क्या करता है? कैसा, जरा बताइए किधर है ये? सच में सिनेमा तो हम कल देखे हैं। हाँ, लेट मी सी, क्या करता है जो आदमी बैठा था? उस क्या लिए रहता है हाथ में? Sir, it takes a torch. हाँ, अंधेरा रहता है, टॉर्च लेता है, उसके बाद आपका सीट नंबर रहता है, वहीं बैठाता है। तो भगवान जी भी जो एटॉम बनाए तो उसको नियम के अनुसार बनाए। इलेक्ट्रॉन जैसे मर्जी वैसे नहीं बैठ सकता है। और ये एक डायग्रामेटिक चीज़ है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। हम छोटे डोज में केमिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले ये डायग्रामेटिक चीज़ है। इसका सबसे ऑर्बिट के बाहर में डिफरेंट फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। उस एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हालांकि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बट समझने के लिए इसलिए मैंने कहा एटॉमिक मॉडल एग्जैक्टली बहुत नियर टू, इसको समझना है पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में, बहुत नियर टू द एक्यूरेसी है ये। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर न्यूक्लियस में रहा।
अब पहला ऑर्बिट का नाम के रहते हैं और इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट न्यूक्लियस से इसको कहते हैं के का ऑर्बिट नंबर 1 देते हैं, 1 फर्स्ट ऑर्बिट नियर द न्यूक्लियस। एल क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑर्बिट नियर द न्यूक्लियस। एम क्या हो जाएगा? थर्ड ऑर्बिट नियर द न्यूक्लियस, ऑलराइट। और एन हो जाएगा फोर्थ ऑर्बिट, के एल एम एन, फोर्थ ऑर्बिट। तो सबसे पहला द रूल इज, यहां पर लिखा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहला क्या बात है? इट इज द वे इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड अराउंड द न्यूक्लियस इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट। तो रूल चलता है, जैसे कि आपको सिनेमा हॉल वाले में बैठाने में भी वो सीट नंबर दिया रहता है, ठीक है, ए बी सी डी ए एफ जी, है ना ऐसे, और वो डिसाइड करते हैं आप कहाँ बैठे। आप कोचिंग में भी आते होंगे तो आप देखते होंगे, मेरा आदत है बच्चों को जहाँ मन वहाँ नहीं बैठने देते हैं, गुस्सा भी आता होगा, बिकॉज इफ़ यू आर क्लोज फ्रेंड्स देन हम वो ब्रेक करते हैं कि नहीं आप वहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए। फिर अगर आप थोड़ा सा क्लास में थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं तो हम किसी एक ऐसे बच्चे को जिसको हम समझते हैं कि इज़ बेटर इन स्टडीज़ और ही कैन हेल्प यू आउट, आई मेक यू इंटरैक्ट सोशली। सेम थिंग इज देयर आर रूल। सबसे पहला रूल क्या है? मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन परमिटेड इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स परमिटेड इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ? 2n स्क्वायर। तो 2 इंटू 1 स्क्वायर इज हाउ मच? क्योंकि k का नंबर 1 है तो 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 2 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 2 1 ज़ा 2, यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन परमिटेड इन द फर्स्ट ऑर्बिट इज 2। देखिए मैंने 2 लाल वहाँ इलेक्ट्रॉन बनाया हुआ, ये सिर्फ मॉडल है, मैंने इसे बना दिया है। सेकेंड में L का 2 इंटू L का नंबर 2 है, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर इज हाउ मच? 8। 2 का स्क्वायर 4, 2 ज़ा 8, तो मैक्सिमम जो रहेगा वो 8 रहेगा। 8 से कम रह सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं रह सकता वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाला में 18 है, 2 इंटू 3 स्क्वायर 18 है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 2 ज़ा 18। फोर्थ में 4 स्क्वायर 16 दूनी 32, ऐसा। अब आप लोग को जो तेज बच्चे यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वो लोग समझेंगे कि मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ। ये मैंने बताया सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए ये बेसिक रूल अप्लाई होना अच्छा है, वैसे समझना है। बाकी बाद में थोड़े से अपवाद होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फिर और बेटर वर्जन्स आने लगता है SPDF फॉर्म में। बट वो बच्चे जो आगे चल रहे हैं हमारे लिए, उनके लिए बेसिकली ये नहीं है, हम लोग पहले बेसिक चल रहे हैं, तब हम लोग वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे और आराम से पहुँचेंगे। बट एक एक बात फाउंडेशन समझना है। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकता है? सेकंड में नहीं सुनाई दे रहा है? थर्ड में, फोर्थ में 32। वेरी गुड। अब है इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होगा जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन घुसा सिनेमा हॉल में, चलते आया इलेक्ट्रॉन, तो आप टॉर्च लेकर खड़ा है। अच्छा 2 हैं, पहला ऑर्बिट में जाइए, नहीं हम सेकंड में जाएंगे, 2 जहाँ पर पहला ऑर्बिट में जाइए। रूल है यहाँ का, हाँ थोड़ा कड़ा आवाज में सुनिए, रूल है। क्या टॉर्च बैठाना जहाँ मन बैठे नहीं बैठेगा, सोचिएगा ज़्यादा तेज बनेंगे तो और लोग को बुला के लाए, सब कान पकड़ के बाहर कर देगा आपको, स्टेडियम में भी कर देता है। आर यू फॉलोइंग? तो इसीलिए बेचारा इलेक्ट्रॉन 2 ठो चुपचाप से यहाँ बैठ जाएगा। और जब तक पहला नहीं फुल होगा, ऐसा नहीं कि 2 आया तो एक यहाँ रख दिए, एक यहाँ रख दिए, 2 सबसे पहले पहला ऑर्बिट फुल कर देंगे। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1 आगे चला जाएगा। कब तक आगे चला जाएगा? जब तक सेकेंड वाला में 8 नहीं हो, यानी L में 8। अब मान लीजिए आपको 9 बचा है तो 8 वहां रखेंगे और फिर M में 1 को भेजेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स फिलिंग इट फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल्स। ये पहले समझ में आ गए। और लास्ट में आपके फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के लिए जान लीजिए कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मान लीजिए आपका थर्ड ऑर्बिट है और थर्ड ऑर्बिट में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 9 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 9 नहीं रख सकता। और वो अगर कोई ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट रह गया तो उसमें 8 ही रख सकते हैं, फिर जो बचा उसको आगे फेंक देंगे। फिर आगे भी बहुत सारे रूल्स हैं। तो इस रूल के हिसाब से अब हम लोग चलते हैं बनाने के लिए। हाइड्रोजन का यहाँ पर ये नंबर 1 है, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन हमको एटॉमिक नंबर से नहीं मतलब, हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा इसमें? तो इसमें सबसे पहला ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? ओके, लिथियम में 3 है, तो क्या करेंगे? कोई जानता है क्या करेंगे? कोई भी जानता है? पहला ऑर्बिट में कितना जाएगा? 2। जो बच गया वो किस में, कौन सा ऑर्बिट में जाएगा? तो मतलब कितना बचेगा? 1। तो 3 हो गया। यानी यहां जो लिखे सम ये आना चाहिए। ऑक्सीजन का पूरा क्लास बताओ। 2 6। क्यों 2 6? क्योंकि पहला में 2 भर जाएगा तो 6 बच गया, तो 6 आगे चला जाएगा। कब तक आगे जाएगा? जब तक वहां पर 8 नहीं हो। तो नियॉन का स्वस्तिक बताएगा। नियॉन पहला में कितना डालें? 2। कितना बच गया? 10 था, 10 लोग 8, तो क्या करेंगे? L।
8 लिख सकते हैं, या सच बोला कि गलत बोला कि सही? 8 लिख सकते हैं, क्योंकि वहां मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना सेकंड में 8 रह सकता है। अगर 9 रहता तब क्या करते हैं, कोई बताएगा? 8 वहीं रख के 1 आगे भेज देते हैं। इसके नेक्स्ट में जस्ट वैसा ही है। लेट अस सी सोडियम में। चलिए सोडियम में क्या होगा? 2, 8 एंड 1। वेरी गुड। तेजस आप यहां बताइएगा अपने बारे में जरा बताया जाए तो, क्या क्या नाम हुआ और कहां पढ़ते हैं? वेयर डू यू स्टडी इन इंग्लिश? ओके, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड? Sir, first of all, the atomic number of sodium is 11. So first, the number of proton is also 11. So first, And electron is 11, also 11. So the first of all, in the first orbit, number of electrons is maximum is 2, and in second orbit there will only be 8, and third orbit the rest will go. Very good. Sit down. Very good. Let us give a hand. Okay. All right. Good. Now what happens? Let us go to aluminum. Who will come? Aluminum. Amar should come. Amar, you should introduce which school and how should I write it? Only tell me what to write. So 2, 8 and 3. 2, 8 and 3. Okay. Can you introduce yourself? Which school? My name is Amar and I am in St. Mary's Academy. St. Mary's Academy. Good. Good. Ankit, you are in which school, beta? Can you tell loudly? Yes, sir, DAV Public School. DAV Public School. Okay. So we have got all that. And Shaurya, your school name? Sir, BD Public School. BD Public School. Sit down. Swastik, your school? DPS. Okay, good. So chlorine is now next. Chlorine, who will tell me? 287. तो क्लोरीन तक तो फिक्स है, हम लोग थर्ड ऑर्बिट में 287, थर्ड ऑर्बिट में 18 तक रख सकते हैं। लेकिन यहां पर भी तो 2, 8 और 8, अब 2, 8, 9 आ जाएगा, रख सकते हैं 9, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में तो 18 रख सकते हैं, तो 9 रख सकते थे रूल के हिसाब से। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है, कहता है आउटर मोस्ट ऑर्बिट, लाठी लेके आ गया, आउटर मोस्ट ऑर्बिट कांट हैव मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप क्या करेंगे? 9 हो जाएगा तो आउटर मोस्ट हो जाएगा, तो क्या करेंगे? 8 यहां रख के 1 बाहर भेज देंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? 20 वाला तब कैसे बनेगा? 2 तो 18 बच गया, 8 तो 8 2 10, यानी 10 बच गया। यहां 10 रख सकते हैं या नहीं? क्यों? क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो जाएगा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 8। और यहां पर कितना? 2। हाँ, एक और पते की बात बताएं, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट वाले, और बाकी सारे इलेक्ट्रॉन को कोर इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इसका तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट 1 है, तो इसका आउटर मोस्ट, इसमें ऑर्बिट 1 है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताइए, सबसे आखिर में जो इलेक्ट्रॉन हो वही नंबर को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1। ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नियॉन का 8, सोडियम का, अल्युमिनियम का, अल्युमिनियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितना है? जो तेज है बताएगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ के सारे इलेक्ट्रॉन को कोर कहा जाता है, 10। यस, तो इसका कोर इलेक्ट्रॉन 10 हुआ। क्लोरीन का 7। ओके, वेरी गुड। देन आर्गन 8। देन अगेन पोटाशियम। अब जान के कुछ गलती भी करो, देखते हैं इसको जान के गलती नर्वस कर देते। इधर आओ, हम कितना ड्रामा करेंगे, हमको डर नहीं। कोर इलेक्ट्रॉन इसमें कितना है? 2 है कि 3 है कि 4 है? 18। अरे बाप रे, नहीं डरा। 18 सही है। काहे बोले 18? सर इसको लास्ट वाले ऑर्बिट वाले को छोड़ के और सब प्लस कर देंगे। वेरी गुड। तो 2, 8, 18। डिड यू अंडरस्टैंड? तो कोर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन मींस, और लास्ट वाला भी कर देते हैं। कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? कितना है? 2 है, और कोर इलेक्ट्रॉन 18। दैट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं? अगर कोई पूछे तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ऑर्बिट। और कोर इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ऑल द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? अब एक और चीज, थोड़ा जानकारी, हमने कहा था कि केमिस्ट्री में कुछ बातों को याद करना पड़ता है ना। तो जैसे कि एक प्रोटॉन का भार कितना होता है,
तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये बटखरा है तौलने के लिए छोटे छोटे पार्टिकल्स को। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। न्यूमेरिकली एक्चुअली इसको कहा जाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। डेफिनेशन दूसरा, लेकिन न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट यही होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट का। एक प्रोटॉन का भार 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। इसको हम याद करके आना है। जैसे इस लड़की ने 30 नाम याद कर लिया अभी तक। ऑलराइट, फिर नेक्स्ट है मास ऑफ न्यूट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन सेम है, यानी जितना मास प्रोटॉन का करीब करीब न्यूट्रॉन का मास उतना ही। साइंटिस्ट के लिए ये माइनर डिफरेंस होता है, बट हम लोग अभी बहुत उतना दूर तक पहुंचना मुश्किल है, अभी तो शुरुआत हुई है। तो हम लोग के लिए दोनों का मास बराबर है। अगर कोई कहेगा मास ऑफ 1 प्रोटॉन, तो रट जाना है, क्या बोलना है, याद कर लेना है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg। अगर कोई कहेगा मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 kg, बहुत छोटा होता है, आप इलेक्ट्रॉन को देख ही नहीं सकते, प्रोटॉन को देख ही नहीं सकते हैं। ऐसे कस कैसे कर देंगे, और एक ड्रॉपलेट निकलेगा, उसमें भी एटॉम्स होते हैं, उस ड्रॉपलेट का हजारों अरबवां भाग, ये बहुत छोटा है यूनिट। फिर उसी तरह से मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ये तो और छोटा है, 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। ये पॉइंट सब शायद वीडियोस में विजिबल नहीं होगा, तो मैं और अच्छा कर देता हूँ। 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg। कहने का मतलब कंपैरिजन, ये बहुत छोटा और छोटा है। कहने का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। करीब करीब 1800 इलेक्ट्रॉन, 1837 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। यानी अगर हम पूरे एटम को तौलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास को नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो काम चलेगा। से फॉर एग्जांपल, पलक इधर आइए, आपका मास मान लीजिए हम करीब करीब 42 kg की है, तो कहेगी सर मास हटा के 42 kg के, तो मास लगा के भी कितना होगी 42 kg। यानी मास का मास नेग्लिजिबल कर सकते हैं। आर यू फॉलोइंग? इसी तरह, इसीलिए कोई भी एटॉम का जब मास नंबर आप सुनते हो, मास नंबर मास से संबंध जब भी रखा जाएगा, तो इसका मतलब हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी पूरे एटॉम का मास न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। अगर पूरा एटॉम का मास अगर हम कहें, से फॉर एग्जांपल हम लोग AMU यूनिट देते हैं कि अगर सोडियम का पूरा एटॉम का मास 23 AMU है, कहने का मतलब उसका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास मिला के 23 AMU है। इलेक्ट्रॉन को पूछते ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होगा लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कंपेयर से। फॉर एग्जांपल इधर आइए, से फॉर एग्जांपल जैसे इनका टोटल मास जो है, से फॉर एग्जांपल ये भी करीब करीब 44 kg के होंगे, और हम कहेंगे कि सर हाथ में पेन पकड़े तो पेन हटा के 44 kg, तो चलेगा। पेन का मास क्या होगा, 50-60 ग्राम होगा, तो इग्नोर कर देते। तो मास जब बात करेंगे किसी भी एटॉम का, तो मास को हम लोग मास में इलेक्ट्रॉन का मास को इग्नोर कर देंगे, चलेगा ये सब। नेक्स्ट है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, भी सब बच्चों को याद करना। जब आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो ये सब थोड़ा सा न्यूमेरिकल के लिए याद रखना है। 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्स। यहाँ पर एक चीज आता है, कूलम्स कोई पूछेगा क्या है, तो यूनिट ऑफ चार्ज। व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज? कूलम। यूनिट ऑफ मास क्या है? kg। यूनिट ऑफ लेंथ क्या है? मीटर। तो यूनिट ऑफ फोर्स कोई जानता है? न्यूटन। और यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? कूलम। तो इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज होता है, दोनों का परिमाण बराबर होता है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इक्वल है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, बट नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन और जस्ट अपोजिटली नेचर होता है प्रोटॉन, पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन बेचारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। यानी 2-3 बात समझ गए। जब चार्ज की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को याद करेंगे, न्यूट्रॉन को भूल जाएंगे। और जब मास की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को याद करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भूल जाएंगे। क्यों भूलेंगे? इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत हल्का और नेग्लिजिबल मास का होता है। प्लीज कॉपी द बोर्ड वर्क, वी आर इनटू अ वेरी राइट पाथ नाउ, डायरेक्शन। थैंक यू।